All right. So, what we'll do is I'll first give a brief introduction about myself. Some of you know me, some of you do not know me. तो बस एक थोड़ा सा I will just give my introduction, and then we will kind of talk about that what is your expectation out of this session, and then we will straight away go to your questions. So हम ज़्यादा इधर उधर की बकवास नहीं करेंगे. मैंने कोई ऐसा स्लाइड पीपीटी भी नहीं बनाया हुआ है, वो उसका मतलब ही नहीं है. Whatever questions you have directly, we are going to answer that. So let's just get started like that. So I am Komal. Some of you may know me, but for those of you who do not know me, I have done. So I basically am founder of Econiti, जहाँ पे we teach for competitive examinations in economics. And I have done my PhD in economics from Indian Statistical Institute, Delhi. I've also done my master's from Delhi School, and I have done, who has just joined? Welcome, welcome. So I have done my undergraduation from Miranda and master's from D School. सो ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद फिर मैं पीएचडी भी की मैंने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद फिर आई वेंट टू टीच आई स्टार्टेड टीचिंग and I have taught at OP Jindal University for 3 years, which is how I know Avni and Nishit over here. They were my students over there, MA Eco students. I taught for 3 years. After that, due to a lot of reasons, I quit because my aim was to teach, basically, teach more, make it a more prominent part of my career. So then after I guess a year later, I co-founded Econiti with another partner. Right now, I am taking care of most of it. So that's the story. Econiti ka bhi, this is the, so we are entering the third year now. So officially Econiti ka second year hai. Otherwise, I have been doing this. This is going to be my third year when I teach for all these economics competitive examinations. So yeah, that's a brief introduction about myself. अब हम क्या करते हैं कि I'm not going to ask you to introduce yourself. I will not put you in on the spot. But I will ask you if someone wants to tell me कि इस session से particularly क्या expectation है. Of course, this the agenda of the session is very clear. You have some questions, you want them answered. But अगर उसके अलावा कुछ ऐसा है, some sort of something else that you're looking for, then you can let me know. Otherwise, हम शुरू कर सकते हैं. Anything? नहीं ठीक है. So whatever is the agenda, that is on everyone's plate. Before I begin, we have Yukti and Ayush over here. ये हमारे social media managers हैं. Both of them are also students from DU, but they have been interning with us for, I guess, 6 to 8 months now. So they will be here moderating. जो भी अगर message chat box पे कुछ questions हैं या कुछ आते हैं कुछ तो. So career options after graduation along with prep of UPSC. Yes, I will do that. So what I'll do is I will show all the questions that have been asked. अच्छा, जिन्होंने भी questions भेजे हैं, I have created a table out of it. उसमें मैंने नाम हटा दिए हैं सबके, तो ऐसा नहीं है कि उसमें नाम रहेगा कि किसका कौन सा क्वेश्चन है. बट I hope that all of you are okay if I show whatever questions that you have asked. I'm not going to pinpoint किसने क्या question पूछा है. ठीक है. So you will see that a lot of questions are along the same lines. कुछ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा स्पेसिफिक हैं, कुछ क्वेश्चंस कम स्पेसिफिक हैं. तो शनाया, whatever this goal you have, we will already be addressing that over here. Okay? So Yukti and Ayush are going to be the moderators. They're going to take care of things that are going on in the chat. They are my small team, so I'm very proud of it. चलो तो शुरू करते हैं. Let me share my screen from here and then I will just show you the questions. और मैंने क्या किया है ना, मैंने सारे क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक. एंड दिस डिविजन इज बेस्ड ऑन कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा वाइड है. राइट. So there are some questions that are very specific. There are some questions that are very specific. There are some questions that are wider, and there are some questions जो काफी philosophical range में चले गए हैं
जिनको भी मैं एड्रेस करूंगी. हाँ, सो आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एज वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग यू कीप ऑन थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इट इज वेरी नेचुरल फॉर यू टू हैव ऑल दीज क्वेश्चंस. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू address each one of it. What I want is कि हम थोड़ा बैक एंड फोर्थ करें. अगर कोई क्वेश्चन में कोई काउंटर डाउट आ रहा है देन प्लीज यू कैन स्पीक डायरेक्टली और यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, वट एवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल. आप वैसे करके यू कैन आस्क मी एंड देन वी कैन गो अहेड. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट लाइक दैट. यू विल सी दैट व्हाट आई हैव डन इज यहाँ पे मैंने 3 कलर कोडिंग किया हुआ है ना, एक येलो, ब्लू एंड ग्रीन. जो ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले, जस्ट वन थिंग, या सो ब्लू वाली जो चीजें हैं वो काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. दे आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एग्जाम और दे आर रिलेटेड टू say the student has is doing something and wants a very particular, wants a very specific direction on that. उनको हम पहले एड्रेस करेंगे. फिर हम चलेंगे ग्रीन पे. ग्रीन वाले जो हैं वो थोड़े से ज्यादा ब्रॉड हैं बिकॉज दे आर अबाउट ओवरऑल इकोनॉमिक्स का ट्रैजेक्टरी के ऊपर वो है. फिर हम येलो वालों को एड्रेस करेंगे बिकॉज येलो पीपल आर asking for an even wider kind of question. All right, so let's start with this one. So this is someone who I'm not sure if they have joined, but ये question है कि this person is an economics student in college getting good grades, but also lost because don't know what to do next, right? So when I start exploring options, let me just, where is my pen? Oh shit. Oh shit. Can you just guys give me 1 second? I forgot my pen. I'll just be back. 1 second, huh? Wow, who does that? That clearly shows that I have very little experience in making YouTube videos. All right. So what we have is over here, कि यहाँ पे she says that, or she or he, I'm not sure, says that when I start exploring options like, UPSC, IES, whatever, these are mainly government exams, जो कि काफी heavy government exams होते हैं. I don't get the starting point, which is necessarily because early start helps, that I know, but I don't know. I get stuck in the start. And when my SEM exams are near, it is clearly evident that I can't do anything extra apart from my college studies, right? So then she says that all I need कहाँ गया, is a perfect guide, right? अरे यार. Anyways, okay, so she needs some guidance. तो इसका आंसर जो है वो पहली चीज ये है, सो दिस पर्सन इज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट बट नॉट फाइनल ईयर. एक चीज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द इयर्स दैट आई हैव टॉट इज के बच्चे चाहते हैं से यूपीएससी या आईईएस या इन सब का प्रिपरेशन करना. एंड ऑफ कोर्स पीपल हैव टोल्ड देम कि भाई उनको पहले से ही प्रिपेयर करना है, द अर्लियर द बेटर. द प्रॉब्लम इज के पहले से का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हैं और उसके साथ आप करने लग जाएं, स्पेशली इफ यू आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन कॉलेज. यूजुअली वी डिस्करेज अगर बच्चे मास्टर्स में हैं, मास्टर्स कर रहे हो, अ लॉट ऑफ यू विल, यहाँ पे जो भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं विच हु विल अग्री विद मी, इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन अ कॉलेज प्रोग्राम, देखो कोई कैसा भी कॉलेज हो, कॉलेज के अपने डिमांड्स होते हैं, उसके अपने टेस्ट चलते हैं, राइट? उसके अपने क्या बोलते हैं, कॉलेज लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है. तो कॉलेज लाइफ चलेंगे, टेस्ट चलेंगे, फेस्ट चलेंगे, क्लासेस चलेंगी, ऑल दोज थिंग्स विल कीप ऑन गोइंग. इवन इफ यू कट डाउन ऑल द क्लटर, यू विल स्टिल बी लेफ्ट विद क्लासेस एंड टेस्ट. और जब टेस्ट आते हैं तो टेस्ट ही देना पड़ता है, राइट? सो इफ यू हैव ज्वाइन अ कॉलेज, अगर डिग्री में टाइम दे ही रहे हो तो डिग्री को ढंग से भी करना है, right? So whoever has asked this question, the first thing that I will suggest is that you do not take this extra burden that because I have to start early, I need to do 2 things at once, especially when one of the things is going to take so much time, which is your college exams. And the other thing that you're aiming for is not just कि भाई कॉलेज के साथ पढ़ते पढ़ते सीयूईटी की तैयारी कर ली, वो आप कर सकते हो. लेकिन अगर द टारगेट इज एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, द टारगेट इज एग्जाम्स लाइक आईईएस, जिनके लिए द प्रेपरेशन साइकिल इटसेल्फ इज ऑफ अ ईयर, सिलेबस खत्म करने में 1 साल लगता है. तो जब सिलेबस खत्म करने में 1 साल लग रहा है, तब आप कॉलेज के साथ इसे ना करें, स्पेशली मास्टर्स के साथ ना करें, राइट? सो आई डोंट नो वेदर दिस पर्सन हैज बिन
इज इन अंडर ग्रेजुएट का फाइनल ईयर या मास्टर्स का फर्स्ट ईयर है, मेरे को नहीं पता है। लेकिन जो भी कर रहे हो, there are some options which in which it can be done. For example, अगर if you get enrolled in say IGNOU या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होता है करिकुलम। a lot of students do that specifically कि अगर उनको भाई आईईएस बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर टारगेट है, आरबीआई है, तो तुम्हें एक मास्टर्स डिग्री की जरूरत है। यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम अनलेस यू हैव अ मास्टर्स डिग्री। इन दैट केस यू नीड अ मास्टर्स डिग्री, लेकिन मास्टर्स डिग्री करने जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं लोग, तो इग्नू या एसओएल ओपन लर्निंग में एनरोल करके then they can prepare alongside. But if you are in a proper regular college, UPSC से target करना, you can push it for a year, right? You can do that. So after you have done that, और अब जब शुरू करना है तब डिपेंड करता है कि कौन से एग्जाम से आपने शुरू करना है। So if you have to start with UPSC का, now this brings me to, I think Shanaya asked that question, that what is the entire spectrum कि UPSC में क्या वो रहता है to explain the exam. So let me do that, right? So I do have some, I thought I'll just do some explanation using this. तो यूपीएससी, आईईएस और आरबीआई, इसको मैं इको नीति में हम इसको साथ में पढ़ाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक स्पेसिफिक सिलेबस बहुत ही ओवरलैपिंग है। ठीक है, यस। हाँ, सो यू अंडरस्टैंड शनाया के कॉलेज के साथ वो करना नहीं होता है आपको। देखो, अगर यूपीएससी है, यूपीएससी में टारगेट मतलब ड्रॉप करना ही पड़ेगा। यूपीएससी एक पूरा इकोसिस्टम है। सो व्हाट इज देयर, पहली बात तो यू हैव, राइट, यू हैव 3 phases। ठीक है, 3 phases हुए तुम्हारे, phases, और यू कैन से 3 तरीक, यू हैव टू पास 3 phases। यू हैव प्रिलिम्स, राइट, यू हैव मेंस, एंड देन फाइनली यू हैव इंटरव्यूज। अभी प्रिलिम्स में जो अभी हुआ, इस साल का प्रिलिम्स ने भी बच्चों को बहुत रुला दिया। तो प्रिलिम्स का क्या सीन है, दैट इट इज एमसीक्यू बेस्ड, एवरीथिंग अंडर द सन काइंड ऑफ सिलेबस है, राइट। सो इट सेज जनरल स्टडीज, जनरल का मतलब ये होता है कि कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। सो इट विल रेंज फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ethics, then you have your environment, science and technology। ठीक है, so it was my first pre, okay। हाँ, तो ये सारा कुछ सिलेबस के अंदर है, प्लस करंट अफेयर्स वेर एवर इट अप्लाइज, इंटरनेशनल रिलेशंस जहां पे जो भी अप्लाई हो रहा है। उसके बाद उसके अलावा तुम्हारा कैट टाइप का, कैट लेवल का नहीं, बट यू ऑल्सो हैव एन एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सैट, जहाँ पे विच इज अ क्वालिफायर। सो यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बेसिक इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ एंड क्वांट एंड ऑल दोज थिंग्स। ये सब पार करके देन यू गेट टू द मेन स्टेज। सो दिस इज एमसीक्यू बेस्ड, यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं। फिर यू गेट टू द मेन स्टेज। मेन स्टेज में बेसिकली 9 पेपर होते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर लॉन्ग फॉर्म पेपर्स। सो ये एमसीक्यू है, ये हो गया लॉन्ग फॉर्म, राइट। लॉन्ग फॉर्म का मतलब कि डिटेल्ड में आंसर लिखना है। इसमें यू हैव 4 पेपर्स दैट आर जीएस। ठीक है, तो ये जीएस 1 2 3 4, जिसका मतलब है कि फिर से एवरीथिंग अंडर द सन बट नाउ इन मोर डिटेल, राइट। सो यू हैव हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री, ये सारी चीजें हो गई। फिर एथिक्स का एक अलग पेपर होता है। फिर तुम्हारा जीएस 3 में तुम्हारा इकोनॉमी, एनवायरनमेंट होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, एंड फाइनली देन यू ऑल्सो हैव 2 other papers which is optional paper 1 and optional paper 2। दिस इज वेयर वी टीच इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एट इकोनीति। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज जस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस, यू कैन हैव एनी ऑप्शनल, लेकिन 2 ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं। ठीक, उसके अलावा फिर तुम्हारे एथिक्स और एसे के 2 और पेपर्स होते हैं। तो कितने हो गए, 4 5 6 7 8, राइट। सो यू हैव एथिक्स एंड ऑप्शनल, सॉरी, एथिक्स एंड एसे, राइट। ये सारा हुआ तुम्हारा मेंस का फेज 2, मेंस, सॉरी, यूपीएससी का फेज 2 विच इज मेंस। एंड आफ्टर दिस देन यू गेट टू द इंटरव्यू स्टेज। फिर वहां पे तो इंटरव्यू होता है 1-on-1, यू सबने 12th फेल देखी ही होगी। तो ये है पूरा इकोसिस्टम। अब बात ये है कि इस पूरे प्रोसेस में
एक साल लगता है. सो प्रिलिम्स हैपन्स अराउंड मई, राइट? मिड मई में होता है. मेंस होता है सितंबर में. और ये इंटरव्यूज कहीं जाकर होते हैं तुम्हारे फेब्रुवरी मार्च में. ठीक है. सो ये पूरा साइकिल ही एक साल का है. ये तो तब जब तुम प्रिपेयर्ड हो. अगर तुम प्रेपरेशन करने बैठते हो, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू स्टार्ट यूजुअली जून से लोग शुरू करते हैं बिकॉज जीएस के बैचेस पहले शुरू हो जाते हैं. सो यू स्टार्ट फ्रॉम जून एंड जून से लेकर दिसंबर तक यू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज पेपर्स. ये जो मेंस के सारे पेपर्स है ना, इनका प्रेपरेशन तुम करते हो बिकॉज दीज आर ऑल लॉन्ग फॉर्म. सबका सिलेबस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू गो पैरेलली. तुम जीएस कर रहे हो, साथ में ऑप्शनल के भी की भी पढ़ाई कर रहे हो. चीजें एटलीस्ट 2 से 3 चीजें पैरेलली चलती रहती हैं. Your aim is to complete the syllabus and make notes which ensure कि next time जब तुम actually इनको revise करो, पढ़ो, next time you do not have to go back to the lecture or go back to the source material. Go back as in of course कुछ doubt हो, कुछ हो तो तुम थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हो. बट नोट्स का मतलब ये है कि तुम्हें ऐसा नहीं हो कि तुम्हें फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़े. राइट? दैट इज द आइडिया टिल डिसम्बर. दिसंबर मिड जनवरी तक ये करना होता है. उसके बाद मिड जनवरी से यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस प्रीलिम्स विच यू गिव इन मे. आफ्टर यू गिव इट इन मे होपिंग दैट यू क्वालिफाई, फिर मई एंड जून फर्स्ट सेकेंड वीक तक कट ऑफ आ जाता है. देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस मेंस विच हैपेंस इन सितंबर. So you see, this is an entire ecosystem which cannot be done with anything else, right? I will, it's not true कि anything else. मैं अभी बताती हूँ कि किन चीजों के साथ कर सकते हो, लेकिन as long as you are completing the syllabus completion stage पे हो, जहाँ पे तुमने पढ़ना शुरू किया है, वहां पे इसको कॉलेज एग्जाम के साथ और इसके साथ करके कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तुम ये कर पाओगे ठीक से एंड नीदर एंड योर कॉलेज इज ऑल्सो गोइंग टू सफर. अल्टीमेटली यू विल हैव टू चूज कॉलेज बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज अ डिग्री कोर्स दैट यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन. देन दिस विल सफर. Right? Multiple students do this, then they leave it, then they stick to the college. फिर वो ये चीज शुरू से उनको दोबारा करनी पड़ती है. Right? So to this question, the answer is, sorry. To this question, the answer is that right now, do not bother about all these things till you have finished the college. और उसके बाद, if you have decided that you have to do CSE, then you have to give it complete attention. All right. Any follow-up questions with this? नो. नो भी बोल दो यार, मुझे ये ऑनलाइन क्लास जैसी फीलिंग आ रही है. नो बोल दो. हाँ, ऐसा गिव मी अ थम्स डाउन. आई वर्क विद दैट. ओके. ठीक है. All right, all right. Okay, so the next question is about RBI Grade B. Complete guide on RBI Grade B. So again, I'll just do, I'm not sure. Whoever asked this question, is that person present in the session today? Accordingly, I will go in the depth. Otherwise, मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगी. दिया. Oh, it's your question, Diya? All right. ठीक है. Then I will go in depth. What I'm also planning is कि इसके बाद I will have another session where I talk about the 3 courses that we cover. उसके बारे में क्योंकि मेरे को पूरा knowledge है, तो वो तीनों के syllabus and references and seats and everything, overlaps, everything I will talk about. But right now, for everyone, RBI Grade B का complete picture, let me give it to you. Okay. So RBI Grade B also has 3 phases. In fact, ये same ही kind of phases होते हैं उसके. So I will just scribble on top of it. You will have a prelims, जिसका की exam कब है? Anyone? जून. कल ही है इसका एग्जाम. ठीक है. RBI Grade B DEPR. Right? So this is RBI Grade B DEPR. What does DEPR stand for? Anyone?
नहीं, DPR स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च। अभी आरबीआई का क्या है, आरबीआई में ग्रेड बी, अच्छा ग्रेड बी को ऐसे मत लो कि ग्रेड ए ग्रेड बी, जो ये सिविल सर्विसेज पोजीशंस हुए, आईएएस आईपीएस है ना, यस गुड दिया। सो ये जो सिविल सर्विसेज पोजीशन है, इनको जनरली गवर्नमेंट जॉब्स में यू हैव ग्रेड ए बी सी डी ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज आर ग्रेड ए ऑफिसर्स, राइट। आईईएस इकोनॉमिक सर्विस वाले भी ग्रेड ए ऑफिसर्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रेड बी ऑफिसर है, दिस इज बेसिकली अ डिफरेंट व्हाट यू से nomenclature that is specific to RBI. So ये RBI grade B जो है एग्जाम, दिस इज एंट्री लेवल जॉब इन RBI। दिस पर्टिकुलर ग्रेड बी के दो किस्म होते हैं, वन इज अ जनरलिस्ट पोजिशन, वन इज अ डीपीआर पोजिशन। जनरलिस्ट इज मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल विद इन आरबीआई। डीईपीआर में जो ग्रेड बी ऑफिसर्स जाते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिस्ट्स विद इन दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी लुक्रेटिव पोजीशन, वेरी, इफ अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है और तुम्हें अच्छा लगता है स्पेसिफिकली द मैक्रो साइड ऑफ थिंग्स, द फाइनेंशियल मार्केट साइड ऑफ थिंग्स, राइट, द मॉनेटरी पॉलिसी साइड ऑफ थिंग्स, मनी एंड बैंकिंग जैसी चीजें, दिस इज ए वेरी वेरी गुड रोल फॉर यू, राइट। सो ये है ग्रेड बी डीईपीआर स्पेसिफिकली। सो इफ यू आर एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट तो डीईपीआर मेक्स मोर सेंस फॉर यू। ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट इज ओपन टू एनीवन। डीईपीआर के लिए यू रिक्वायर मास्टर्स, मास्टर्स अगर नहीं है, मतलब अगर डिग्री नहीं है हाथ में या मार्कशीट नहीं है प्रोविजनल, यू कैनॉट इवन सिट फॉर डीईपीआर। Usually, even if you do not have a mark sheet or a degree, you can sit for IES, but that is not true for DPR. तो DPR में बैठने के लिए आपको डिग्री हाथ में चाहिए। अभी इसमें भी तीन फेज होते हैं, फेज वन इज MCQ बेस्ड, फेज टू इज लॉन्ग फॉर्म एंड फेज थ्री इज इंटरव्यू। ठीक है, सो फेज वन और फेज टू के डेट्स इस साल के ऑलरेडी आ चुके हैं। फेज वन इज ऑन द 14th विच इज टुमारो। फेज टू इज आई थिंक 25th और 26th of July, right, and phase 3 will be announced later. So phase 1 में जो है MCQ based questions आते हैं, and there are two papers, right? So you have paper 1 which is your economics, and paper 2 जहाँ पे English and essay होता है, which in which you have to type, जहाँ पे आधा टाइम इनका कीबोर्ड नहीं चलता है, वो एक अलग चैलेंज है which involves a lot of luck based element in this exam. Hopefully whenever you sit for this exam your keyboard will work. Last year few of my students, उनका कीबोर्ड ठोक ठोक के उनकी हालत खराब थी। एनीवेज लेट अस ऑल प्रे दैट दिस डजंट हैपन टू एनी स्टूडेंट। ओके, सो फेज वन जो होता है उसमें जो इकोनॉमिक्स वाला पेपर है स्पेसिफिकली, उसमें 100 नंबर का पेपर होता है। यू हैव 65 क्वेश्चंस, देयर आर 30 क्वेश्चंस ऑन वन मार्क, 35 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। इस पेपर का जो लेवल होता है, दिस इज वेरी सिमिलर टू यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। So UGC NET is that exam which qualifies you for further admission into PhD programs or for any kind of teaching jobs within the country. ठीक है, सो हर सब्जेक्ट का अलग होता है। जो UGC NET इकोनॉमिक्स हुआ तो वो इकोनॉमिक्स PhD positions के लिए it will open doors for you when you clear the cutoff. Also involves JRF, Junior Research Fellowship, which will be provided to you if you want to avail of it. ठीक है, सो यूजीसी और आरबीआई के क्वेश्चंस एक्सट्रीमली सिमिलर, अ लिटिल बिलो इज योर सीयूईटी पीजी। तो अगर तुम किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो इनमें से, तुम तीनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। ऑलराइट, वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ सिलेबस तो सेम ही है, थोड़ा बहुत जैसे कि आरबीआई में एनवायरमेंट का वेटेज कम होता है, यूजीसी नेट में एनवायरमेंट का वेटेज रिसेंटली काफी बढ़ रहा है, बट द सिलेबस इज द सेम। यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें होती है। ये सब चीजें अलग, थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन प्रेपरेशन के लिए जो लेवल चाहिए वो सेम है, जो सिलेबस चाहिए वो सेम है। एग्जाम स्पेसिफिक यू हैव टू ट्वीक दी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी जस्ट बेस्ड ऑन कि किसमें कितना नेगेटिव मार्किंग है, कि कितने क्वेश्चन है, कि क्या है, राइट। दिस इज फेज वन। देन यू गो टू फेज टू। फेज टू हैज 2 पेपर्स। एक हो गया तुम्हारा ऑल द थ्योरी काइंड ऑफ थिंग्स which involve your micro, macro, quant methods, सब कुछ, public, international growth, everything. And then you have your Indian eco, right? So Indian eco is basically whatever is about the real world, about India, about India's relationship with others. So ये हुआ पेपर 2 of phase 2. So phase 2 में 2 पेपर्स हो गए, पेपर 1 and paper 2, theory and
रियल वर्ल्ड, एंड देन यू गो टू इंटरव्यू. सो ये है आरबीआई का मोटा मोटा रोड मैप. ओके, सो फेज 1 क्लियर करने के बाद दिस ईयर दे हैव प्रीपोन्ड एवरीथिंग. बिना एक महीने पहले उन्होंने सब कुछ प्रीपोन कर दिया, बट खैर ठीक है, यही पैटर्न रहता है. सो एक्सक्यूज मी. हाँ, सो या सो फेज 2 में जो आंसर लिखने का तरीका है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू हाउ यू वुड राइट फॉर आईईएस, बट इसमें थोड़ा सा और फोकस्ड, थोड़ा सा और मैक्रो पॉलिसी ओरिएंटेड आंसर्स लिखना है, जो कि ऑफ कोर्स will be taught wherever, if you enroll in any institute they will teach you, or I don't know, you can learn it from yourself also, या कुछ वीडियोस देख के, या फिर किसी से मेंटोर से पूछ के, या जो भी आप जैसे भी प्रिपेयर करें. आंसर लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है इन सब चीजों का, विच कैन बी लर्न्ड. एंड इंटरव्यू इज एन इंटरव्यू, राइट? सो दिस इज योर आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर का पैटर्न. यूजुअली इसमें डीपीआर में कम सीट्स होते हैं. इस साल आई गेस इन्होंने, सो देयर इज 17 सीट्स, 17 सीट्स की वैकेंसी है. Your generalist position has more seats, around 80K around it, but the economist role has fewer seats. All right. Any related questions you have, Dia, about this? If you want to know the syllabus and everything, I will talk about it, but this is not the session where we discuss it. I will have a separate session जब मैं ये सब चीजों का बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी, syllabus, references and everything. All right. Do you have a related question? Ma'am, if I have done my master's, so should I go for this RBI because I am planning for UGC NET as well, na ma'am? But Hmm. some other way I feel कि I can also appear for IES exam. So ma'am, what should be my strategy to excel in both the exams as well as UGC NET? स्ट्रेटेजी यही है कि बेसिक सिलेबस कवर करो, और जब जो एग्जाम आए उसके स्पेसिफिक पढ़ो, बिकॉज द बेसिक सिलेबस इज सेम अक्रॉस ऑल थ्री. तीनों का मैम सेम ही है सिलेबस, यस. एग्जैक्टली सेम, और ऑप्शनल का थोड़ा कम होगा. ऑप्शनल का थोड़ा कम है. सो द आइडिया इज दैट, ये देखो दोनों जो एग्जाम्स हैं, आरबीआई है और आईईएस है, दोनों में मास्टर्स लेवल चाहिए. मतलब तुमने मास्टर्स कर चुके होगे, यस यूजीसी मैम. नेट के लिए भी तुम मास्टर्स कर चुके होगे, तभी तुम पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट? यस तो मैम. सबका सिलेबस सेम है, डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे है. आईईएस का डिफिकल्टी लेवल इज द हाईएस्ट आई वुड से. उसके बाद यू हैव योर आरबीआई, उसके बाद यू हैव योर यूजीसी. ओके मैम. सो वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईईएस, ये सारे ना एज अ बाय प्रोडक्ट ही कवर होते जाएंगे. मैम, अगर आईएएस के लिए स्क्रैच से स्टार्ट करें, अगर कोई इकोनॉमिक्स इग्नू से करता है फोर से, और हम्म. उसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है, हम्म. बीकॉम करी हुई है या फिर बीए प्रोग्राम करा है वो, और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इग्नू से कर लिया, एंड इग्नू से तो कोई लर्निंग इतनी होती नहीं है, हम्म. तो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर हिम और हर टू क्लियर आईएएस और आरबीआई और यूजीसी नेट? तो चलो वो तो पास्ट ईयर से हो जाए, बट इन हम्म. दोनों के लिए मैम अगर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कैसे, मतलब कितना टाइम लग सकता है? हम्म. तो इन दैट केस आई विल से कि यू विल नीड 6 or to 8 months, एटलीस्ट 8 months, गिवन के इसमें वो क्वांट मेथड्स भी होते हैं और वो सारी एडवांस इकोनॉमिक्स चीजें भी हैं. 8 महीने लगेंगे सिलेबस खत्म करने में. उसके ओके. साथ आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि तुम थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग और पास्ट ईयर्स का भी देखते हुए चलोगे. So it will take 6 to 8 months, not less than 6 months. So 6 to 8 months to finish the syllabus. After that, you can give a first attempt. First attempt is, I always say कि वो एक पिच इंस्पेक्शन टाइप का अटेम्प्ट होना चाहिए, जहाँ पे तुम ये नहीं एम कर रहे हो कि कितने नंबर आए और क्या, बस ये देखो कि एग्जाम हॉल में बैठ के कैसा लगता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ बिकॉज यू हैव गिवन योर सेल्फ अ फर्स्ट एक्सपोजर. ठीक है. ओके. उसके बाद इट इज द सेकेंड ईयर आफ्टर, से सपोज ये सब करने में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज यू स्टार्ट इन जुलाई. सो तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा से फेब्रुवरी मार्च तक. उसके बाद तुम रिवाइज करके थोड़ा बहुत यू गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन जून, एंड देन यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज, 1 साल तो कम से कम बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिलेबस खत्म करो. देन यू कैन डू से अ जॉब अलोंग साइड और सम सॉर्ट ऑफ कोर्स अगर कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी डेडिकेटेड आवर्स दो, बिकॉज द सेकेंड ईयर इज अबाउट आंसर राइटिंग.
आईईएस और आरबीआई में आंसर राइटिंग पैरामाउंट है। ओके ठीक है, तो वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते करते जब तुम पहुंचोगे तो 2 years, देन सो 2 years इज द टाइम। मैम, मैथमेटिकल बैकग्राउंड जैसे फॉर से मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ मैथ्स में, मेरे को प्रॉब्लम आती है इकोट्रिक्स में, स्टार्ट्स में, हम्म। इवन क्वांटिटेटिव मेथड्स में, एमएमई में भी आती है। तो मैम मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड काफ़ी वीक है, तो अगर मुझे कितना टाइम लगेगा इसको भी स्ट्रॉन्ग करने में? फिर आप भी मतलब बहुत सारी माइक्रो में भी ये सब यूज़ होता है। थ्योरेटिकल पार्ट इज स्ट्रॉन्ग, बट मुझे थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो उसका बेस बनाने में मैम कितना टाइम लगेगा? अगर आप कह रहे हो 8 महीने में स्लेट्स आप कह रहे हो 8 महीने लगेंगे सिलेबस कवर करने में, तो उसमें ही हो जाएगा। हाँ मैम, उसमें ही हो उसी में जाएगा। वो उसी में हो मैंने इंश्योर जाएगा। करके ही बोला है, मैंने 8 इसीलिए बोला है क्योंकि यू विल नीड एक्स्ट्रा टाइम फॉर इकोट्रिक्स, एमएमई, सम एडवांस माइक्रो। ओके। ठीक है, वो ओके उसमें मैम। करके ही बोला मैंने। ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, I have a lot of questions. What is the right time to start preparing for it? Just completed my first year of undergraduation. Not the time दिया। नहीं, ग्रेजुएशन के बाद तुम एलिजिबल ही नहीं होगे। मास्टर्स, एंड मास्टर्स में भी ना, जब तक मास्टर्स की तुमने एग्जाम नहीं दे दिया, सो आस्क अजय, यहाँ पे यू हैव अजय ओवर हियर, ही एंड अजय के साथ और भी स्टूडेंट्स थे मेरे इन, ये दे कैन नॉट सिट फॉर द एग्जाम टिल यू हैव अ प्रोविजनल मास्टर्स डिग्री। ठीक है, सो नहीं, आई थिंक अजय कुड, राइट, सॉरी समवन एल्स, बट एनीवेज मास्टर्स डिग्री चाहिए फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज अंडर ग्रेजुएट। टू अर्ली, टू अर्ली, कोई फायदा ही नहीं है अभी। मतलब तुम अपना पढ़ना शुरू कर सकते हो, यू कैन बी मोर अवेयर अबाउट इट, बी मोर से प्रोएक्टिवली current events, न्यूज, पॉलिसी, यू कैन डू ऑल दैट। बट अभी फर्स्ट ईयर में तुमने पढ़ी ही नहीं है वो सारी चीजें जो सिलेबस में कवर्ड है, right? So, too early for that. What government exams am I eligible for after my bachelor's? Okay, I'll come to that. What government exam can I just give after my grad? Same question, तो मैं दोनों ही बोल देती हूँ। For grade B criteria is graduation. I heard for DPI. Yes, yes, yes. तो जो जनरलिस्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन काफी है। डीपीआर के लिए यू नीड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और रिलेटेड फील्ड। ठीक है, अच्छा, आई विल कम टू योर क्वेश्चन तेजस्वी एंड दिया, बट जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं लेट मी एड्रेस देम फर्स्ट। वो जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो उस रिलेटेड क्वेश्चंस भी इधर हैं, सो आई विल गेट टू इट व्हेन आई गेट टू दोस क्वेश्चंस, राइट? ओके, देन देयर इज अनदर क्वेश्चन ओवर हियर which is asking ke yeah, this one, okay, I have given my first prelims this year, but for further attempts, I want to be on a safer side and have something, maybe a job, financial independence, but it shouldn't hamper my prep. All right. Is this student over here? Yes. Okay, so this was you, Shanaya. अच्छा, तुमने अपना फर्स्ट वो दिया है ना? हाँ। डोंट, अगर यूपीएससी करना है तो आप साथ में कुछ और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यू नो, राइट, यू हैव गिवन इट, यू नो द काइंड ऑफ टाइम एंड द काइंड ऑफ मेंटल स्पेस इट रिक्वायर्स। what you can do what you can do is that if you have done your masters, have you done your masters or अच्छा एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यू डिडंट टेल मी व्हाट, विच ईयर आर यू, और क्या किया है तुमने? नॉट श्योर, हाँ। हाँ, मैं आती हूँ उसके ऊपर। सो शनाया, अगर तुमने किया हुआ है से मास्टर्स, और यू आर इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स, देन व्हाट यू कैन डू इज कि यूपीएससी का जब तुम्हारा ग्रेड इन 2025, अंडर ग्रेड यू मीन, राइट? यूपीएससी अगर ढंग से देना है, इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, नथिंग गोज, नो, एटलीस्ट ये एग्जाम ऐसा है ना कि होने की गारंटी ऑफ कोर्स कभी भी नहीं है, लेकिन होगा तभी जब तुम इसको वो अनडिवाइडेड अटेंशन दोगे। यू नीड 1 year for syllabus completion, and you need another year to do all that writing practice, all that current affairs practice, all that newspaper going through, optional ethics, essay, everything.
and then from January you switch your strategy and you get into MCQ mode. तो मैं ये बोलूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मोर पर्सनल विथ यू अभी. इफ यू वांट यू कैन टॉक टू मी लेटर. हर किसी की सिचुएशन अलग होती है इन टर्म्स ऑफ सो आई हैव अ वीडियो ऑन दिस ऑन यूट्यूब जहाँ पे आई सेड दैट वेन एवर यू आर चूजिंग अ करियर ऑप्शन यू हैव टू थिंक अलोंग 3-4 डायमेंशंस, राइट. सो वन ऑफ द डायमेंशन इज दैट कि तुम्हारा टाइम होराइजन क्या है और तुम्हारा रिस्क प्रेफरेंस क्या है. डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर तुमने ये सब चीजें कंसीडर करके और सिर्फ घर वालों के बोलने से या रिश्तेदारों के प्रेशर में यू आर नॉट डूइंग सिविल सर्विसेज, तो अगर ये सब चीजें कंसीडर करके यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू डू दिस, यू हैव टू गिव इट एटलीस्ट 2 साल इसको देना पड़ेगा, तब चांसेस रियलिस्टिक हैं. ठीक है. Job done, answer writing, etc. But for my second attempt, I'm confused if pre-result will not be on. It is always going to be the case, right? So, what we can do in this instance is that instead of preparing for or instead of doing a job, we can prepare for CUET PG. ठीक है. उससे क्या होगा कि क्योंकि तुम्हारा ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, इज इट इकोनॉमिक्स, PSIR. ओके. सो यू कैन थिंक, हो सकता है CUET में वट एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू डू अ मास्टर्स इन, कुछ तुमको वैसा बैकअप सोचना पड़ेगा. ठीक है. अभी जॉब में घुसना इज गोइंग टू, देखो हमको ऐसे लगता है कि जॉब करेंगे और फिर घर आके पढ़ाई कर लेंगे, बट द काइंड ऑफ वर्क कल्चर वी हैव इन इंडिया है ना, ये किसी से छुपा नहीं है. जो तुमको पैसे देगा वो तुम्हें रगड़ के ही रखेगा, राइट. दे विल टेक, मतलब वो बोलते हैं ना वसूल, तो वो करेंगे तुमसे. सो वेन यू ज्वाइन समथिंग, जैसे कि वी वर जस्ट टॉकिंग, जैसे जब कॉलेज एग्जाम आता है तो कॉलेज एग्जाम के लिए ही पढ़ना पड़ता है, उसी तरह जब जॉब का इमरजेंसी आएगा तुम्हें जॉब की इमरजेंसी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, राइट. सो इफ इट इज नॉट द केस दैट यू हैव दिस सम सॉर्ट ऑफ कोई जिम्मेदारी या कोई स्पेसिफिक, अगर तुम्हारा सिचुएशन नहीं है इन विच यू नीड टू स्टार्ट अर्निंग इमीडिएटली, इफ इट इज ओनली इन योर हेड और यू कैन एक्चुअली पुश इट. What you can do is you prepare, जिस भी कोर्स में जिस भी सब्जेक्ट में you want to do a masters, you do that. उसका प्रिपरेशन करो और उसका एग्जाम देके वो अपना बैकअप रेडी रखो कि अगर ये नहीं हुआ देन आई कैन एनरोल इन सम प्रोग्राम एंड फ्रॉम देयर आई कैन टेक इट फॉरवर्ड. ठीक है. जॉब 1 साल मत करो. जॉब का मतलब होता है इस देश में नौकरी. ठीक है. वो नौकरी का मतलब होता है कि आपको उसमें टाइम देना है. कोई तुम्हें पैसे दे रहा है तो तुम वो जॉब पे कॉलेज की तरह शर्क नहीं कर पाओगे. ऑलराइट. हाँ मयंक. One more question about doing research with a professor. That is much more doable. लेकिन the professor should know that you are preparing for this and the workload should not be much. देखो क्या होता है ना कि it's not only about the work that you do. It is also that suppose you're doing research, right? That occupies, हमारा brain क्या है? हमारा brain is just like your computer RAM, right? There can only be so many active things on it. There can be a lot of things in your ROM, a lot of things on the hard disk, a lot of things on the extendable drive. लेकिन रैम में लिमिटेड स्पेस होता है और उसमें तुम अगर यू ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड सिंस यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि सिविल सर्विस का प्रेपरेशन का के लिए जो माइंडसेट चाहिए वो अलग चाहिए कंपेयर टू रिसर्च, कंपेयर टू कॉलेज की पढ़ाई. तो तुम कर सकती हो अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ तो करना है, बट लेट whoever is the professor know that you are going to be preparing for this और ये तुम्हारा अभी के लिए 1 साल के लिए तुम्हारा मेन प्रायोरिटी है. ऑलराइट. कैन यू प्रिपेयर यूपीएससी एंड आईएएस एट द सेम टाइम. इसके लिए मैं बोल रही थी अगर तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, इफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज व्हाट यू आर चूजिंग, देन फ्रॉम द सेकेंड ईयर, राइट, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा सबका ही. सेकेंड ईयर से तुम साथ में कर सकते हो. तुम क्या कर सकते हो कि तुम जब जीएस का प्रिपेयर कर रहे हो तो जीएस का प्रिपेयर कर रहे हो, एंड वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल देन यू ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर आंसर राइटिंग फॉर आईईएस. दिस इज वेरी मच डूएबल एंड वेरी मच सजेस्टेड ऑल्सो. ये एक अच्छा बैकअप स्ट्रैटेजी है. सिलेबस कंप्लीट करिए, सेकेंड ईयर से आप दोनों साथ में चला सकते हैं.
ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि सीएससी के साथ आप कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे आप पीजी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर सकते हो. यू चूज वट एवर इज योर द बैकअप दैट यू आर प्लानिंग, दैट बैकअप हैज टू अलाइन विथ वट एवर इज योर सीएससी सिलेबस, वट मैम एवर इज योर ऑप्शनल सिलेबस. फर्स्ट ईयर में सीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, फर्स्ट ईयर आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या सेकंड ईयर से जीएस स्टार्ट करनी चाहिए? सीएससी पहले, जो बड़ा सिलेबस ना, सीएससी में सिर्फ ऑप्शनल थोड़ी है, पूरी दुनिया जहान की चीजें हैं ना उधर. हाँ मैम, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आईएएस की पूरी प्रिपरेशन ढंग से करूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर सीएससी की स्टार्ट करूँगी, मतलब जीएस वगैरह नहीं। डिपेंड करता है तुम किस चीज के लिए इतना सीरियस हो. मैम मुझे लगता है मेरे लिए आईएएस बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें नौकरी लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आईएएस से। डेफिनेटली. तो इसलिए एक साल उसके लिए जम के पढ़ाई करनी चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम तो जीएस है ही, वो तो 2 साल से पढ़ ही रहे हैं जीएस तो। बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हाँ सीडीएस और डिफेंस वगैरह की। क्या. हाँ, in your case that makes sense because you have already been preparing for all these exams. यस Hmm. मैम। ठीक है. Then the next question is, I'll go forward. All right. The next question is that I want to know more about a PhD in economics. Is this person over here? एक काम करती हूँ. Let me take this next question first. Difference between IFS and IES because this is more related to what we are already doing. ठीक है. तो ये करके फिर हम PhD पे चलते हैं. IFS and IES. Very different. By IFS, I assume you mean Indian Foreign Services and not Forest Services. तो IFS जो है ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, जस्ट लाइक IAS. IFS का क्या काम है? बेसिकली international relations, right? So the job is of a diplomat. IES is the job of an economist. IES basically government का in-house economist होते हैं. IES का काम होता है that you do policy research, you do impact evaluation, you do data analysis, all these things for the government, and you will be posted into various ministries. जिस भी मिनिस्ट्री में आपकी पोस्टिंग हुई है उस मिनिस्ट्री के काम के हिसाब से आपको रिसर्च करना होगा. Right, so it is the role of an economist. You will analyze data, you will give policy suggestions, you will formulate policies, all these kinds of things. You will be an economist of the government. IFS is completely different. That is a diplomatic job, and diplomat at the highest level, because you are now a diplomat between the country and its and other countries, right? So you will be posted in various other countries, in high commissions, right? So in embassies, depend करता है कि क्या तुम्हारा किस कंट्री में जा रहे हो, right? And the diplomacy, the high level talks, you are a representative of India in these countries. These are completely different jobs. IFS के लिए क्या करते हैं? IFS, IAS, जो UPSC CSE के थ्रू आप IFS बनते हो, usually the first say 80 to 100 ranks become IAS officers, administrative services. उसके बाद IFS का ऑप्शन दिया जाता है लोगों को. A lot of people do not choose to be IFS officers because it requires a lot of traveling outside the country. But I guess उससे से 100 से 200 तक या 120 से 200, around this range is where you get IFS positions. After that you get IPS positions. So that is UPSC CSE के through, and IES is through your IES exam. Because ये दोनों completely different हैं in terms of the exam, the job and everything. Right? Unless you take economics optional, तो उससे optional में तुमको overlap मिलेगा, but the job profile, the skill set required, the aptitude required, completely different. Right? Okay. Is it possible to clear these exams alongside a full-time job? Mostly I have answered this. Degree from IGNOU worth. Worth depending on कि तुम्हें क्या करना है. अगर तुम्हें मास्टर्स के बेसिस पे कुछ आगे जॉब पानी है तो नॉट सो मच वर्थ. बट अगर तुम मास्टर्स फॉर एक क्वालिफिकेशन कर रहे हो और यू आर डूइंग मास्टर्स जस्ट एज अ बैकअप के भाई यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दीज अदर एग्जाम्स, देन डेफिनेटली वर्थ इट. ओके. Depends what is your
goal. A lot of people enroll in IGNOU because they want to be eligible for these exams. लेकिन जब ये एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना वो, तो उसके बाद वो CUET PG और UGC नेट दोनों की तैयारी कर रहे होते हैं साथ में, बिकॉज इफ दे डोंट क्वालिफाई दे कैन एनरोल इन अ बेटर मास्टर्स और दे कैन एनरोल इन अ PhD प्रोग्राम. ठीक है. जिस तरीके के ये एग्जाम्स हैं, एक बैकअप स्ट्रेटजी जो है अपनी तगड़ी होनी चाहिए. बट बैकअप तगड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम इधर कुछ और पढ़ रहे हैं और बैकअप के लिए कुछ और पढ़ रहे हैं. बैकअप हैज टू बी समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स वट एवर यू आर स्टडी. ओके. Is it possible to clear these exams alongside a full job? Definitely possible. My only suggestion is कि पहले साल जो है वो जॉब मत करो. सिलेबस कंप्लीशन जो है वो फुल तरीके से ऐसे नोट्स बना लो कि भाई नेक्स्ट टाइम you only have to revise and write answers. Then you can do it alongside a job, right? Of course, if you have to do it with a job, possible. Just start earlier, give more hours. IES और RBI किया जा सकता है. CSE के लिए I do not suggest that. Okay, I will come to Ajay's question. Let me get to hear more about PhD in economics. Is this person here PhD in economics के question वाला या वाली? No? All right, then I will just be very brief about it. देखो, PhD, what is this? Okay. So PhD in economics or in any subject, हमको पता है that it comes with a long gestation period and it puts you in a specific track that is academia. ठीक है. ऐसा नहीं है कि PhD करने के बाद आपको सिर्फ अकेडमिया में ही जाना है. अकेडमिया का मतलब होता है that you do research and if you get employed in any university, in any college, then you teach. Alongside teaching, you do your research, you publish, and that is how you climb the ladder in this particular track, right? So this is what I was doing. After my PhD, I joined a teaching position as an assistant professor, and I was also doing my research alongside. And the expectation is publication plus teaching, right? Now, if you want to know more about PhD in terms of the process, I'll just be brief. Process यही होता है कि in India, you can qualify, you can go the UGC net way, which makes you eligible for a PhD program anywhere. And then usually whatever university you are enrolling in, उसमें हर किसी का अपना अलग से उनका interview process होता है, in which usually again you have to give a thesis proposal. There will be an interview and you will be questioned based on your thesis proposal, and you may be offered a position over there. वहाँ पे if you have qualified JRF, तो JRF से आपको stipend मिलता है, and junior research fellowship. Then for 2 years, after 2 years, you get promoted to senior research fellow, in which your stipend increases. ठीक है. और ये करके 4-5 साल, whatever is the gestation period, then you can get your PhD degree and you can get into teaching or research, or you can again go for corporate. Again, you can do whatever you want. It doesn't stop you from doing these other things. It's just that you can be doing those things. You can get into corporate even before doing your PhD. But हाँ ये है कि PhD करने के बाद अगर तुम corporate में जाते हो तो the packages that you can get is going to be very lucrative. लेकिन जो लोग PhD करते हैं, coming from personal experience, whoever does a PhD does not do it because they want to go into corporate. If you want to do a PhD, you have to have that love for whatever subject that you're doing. And when I say love, it doesn't mean the kind of love that you are, कि तुम्हें इकोनॉमिक्स सपोज पढ़ने में अच्छा लगता है या पढ़ाने में अच्छा लगता है. नहीं. This is a very specific kind of love where research excites you, right? So you have to be the kind of person जिसको के ये दिमाग में चलता रहे कि अच्छा इसमें और क्या तरीके से, ओके दिस इज अ रिसर्च पेपर आई हैव रेड और इसमें ये चीज मिसिंग लग रही है ना, सो कैन आई डू समथिंग एल्स, कैन आई थिंक अबाउट समथिंग दैट कैन फिल दिस गैप इन द लिटरेचर.
और कुछ ऐसा आइडिया आया, चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं, चलो इस पे देखते हैं क्या काम हो सकता है, चलो इसका डेटा इकट्ठा करके देखते हैं. That kind of excitement should drive you to PhD, because PhD is a very long commitment, and if you are not excited by research, it can become very painful. What happens is कि जब तक हम कॉलेज कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक सेट करिकुलम होता है, हमको पता है ये पढ़ना है, ये एग्जाम देना है. Even for these competitive exams, you have a syllabus, you do it, there is a certain way, that certain way in which answers are expected, certain way to do it, you do it, and you qualify, you don't qualify, but ये path well defined. PhD जो है वो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट होता है, कि तुमको कोई नहीं बताएगा कि क्या करना है. देयर विल बी योर एडवाइजर, देयर विल बी योर सुपरवाइजर, शी विल टेल यू कि भाई जो तुम काम कर रहे हो ठीक डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट नो वन विल डू योर जॉब फॉर यू, एंड यू हैव टू फाइंड what you want to do. So this is very natural. This comes very naturally to a lot of people, and this becomes very challenging to a lot of people. So when you decide for PhD, make a very informed decision. All right. Okay. So this brings us end to the blue questions except for this. So अजय ने ये क्वेश्चन पूछा है, मेरे को पता है ये क्वेश्चन अजय ने पूछा है, that if you were in my place, आप अगले 4-5 दिन कैसे यूज करते. I'll tell you, मैंने इसलिए बोलूँ कि अजय ने क्वेश्चन पूछा है, because this question seems very out of context. The context is that he is going to be sitting for RBI, sorry, for IES, and then he just wants to know कि एग्जाम के लास्ट दिन में आप क्या करोगे, लास्ट एक हफ्ते में. सो दिस अगेन डिपेंड्स ऑन के एग्जाम का पर्पस क्या है. राइट नाउ अजय के एग्जाम का पर्पस है पिच इंस्पेक्शन. उसमें योर स्ट्रेटजी विल बी डिफरेंट. इफ योर एग्जाम इज द द सीरियस अटेम्प्ट दैट यू आर डूइंग, द स्ट्रेटजी विल बी डिफरेंट. Right? So if your exam is for pitch inspection, then you keep yourself in touch with the subject, है ना. और कुछ कुछ रिवीजन करो, हो सके आंसर राइटिंग करो, थोड़ा बहुत ऐसे करो कि एग्जाम में जाके आंसर लिखने के लिए पेन उठाना पड़े तो 2 आंसर लिखने के बाद हाथ ना दुखने लग जाए, है ना. वी नो दैट नन ऑफ अस आर यूजिंग पेन्स दीज डेज. बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक इफ यू स्टार्ट राइटिंग. 10-10 मिनट तक लिखोगे तो फिर तुम्हारा हाथ ही नहीं काम करेगा, और फिर दैट इज समथिंग दैट शुड नॉट यू नो बिकम अ हर्डल इन योर पिच इंस्पेक्शन. तो वो सब चीजें थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो. इतना करो कि एग्जाम हॉल तक पहुंचो बिना डरे, राइट, एंड जस्ट ट्रीट इट फॉर व्हाट इट इज. रिमेंबर, ये सब जो भी कर रहे हो ना, एग्जाम ही है. इट्स जस्ट एन एग्जाम, राइट. It is career is of course very important. You are all going to work very hard for it, you are already working very hard for it. That is true. But uh, इसको जब हम इतना सीरियसली लेने लग जाते हैं ना, it becomes problematic and counterproductive. राइट. सो अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो वो कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं, राइट, कि भाई अभी एग्जाम है, हम कैसे देंगे कैसे देंगे. अनदर ऑफ माई स्टूडेंट, शी वाज सेइंग कि मैम ये एग्जाम है और मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. अरे तो क्या हो जाएगा, खराब ही नंबर आएंगे ना यार, तो क्या हो गया. I mean, I'm not saying that take it lightly when you're preparing for it, but I'm just saying that don't take it so seriously that it fogs your brain. All right. So if you are going for a pitch test, if you're going for a pitch inspection, then just be prepared कि वहां पे बैठ के आप कुछ कर सको, वहां पे आपका ब्रेन फॉग ना हो, एंड गो विद एन अब्सॉर्बिंग माइंडसेट दैट लेट मी सी कि भाई यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है, मेरे को कैसा फील हो रहा है. क्वेश्चन देख के आंसर याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी लिख रहे हैं हम, am I able to structure it properly, am I able to do some good things out of it. नहीं, नहीं कर पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या दिक्कत आ रही है. am I panicking too much, am I unable to frame things even though I know the concept, क्या प्रॉब्लम आ रही है. ये चीजें इंस्पेक्ट करके you get out of a pitch inspection, right. If it is a serious attempt, then we will talk about it later. None of you are giving serious attempts right now. Okay. So this brings us to the end of the direct questions, the blue questions. If there is any follow-up question short में, तो I will answer. नहीं तो I'll move to the green questions. चलें फिर. देखो फिर से yes no कुछ नहीं. ओके.
thinking of taking a drop this year since my CUET PG score wasn't that good. Okay, Tina. Uh, okay, Tina, I will come to this question again. ये question I will remember and I'll come to it. Right? Let me just first answer the questions that are here. अगर कोई follow-up question नहीं है तो then I will move forward. CUET PG का score नहीं था तो what do you think that I should be doing there? ठीक है, I'll come to it. Alright. Now let's go to the green. First question is that what should a third year economics student do to make her resume stand out or be strong? And by third year, I'm assuming that she's not going to go into fourth year because she says that she is a final year economics student. Okay. So CV strong बनाने के लिए, this is a question that keeps on coming again and again क्योंकि is econometrics really that difficult? No. नहीं है, नहीं है. एंड आई एम सेइंग दिस क्योंकि मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था इकोनॉमेट्रिक्स. मतलब मेरे तो ऊपर से ही उड़ जाता था. आई बट इट इज नॉट. You need two things. You need the correct book and you need the correct teacher. ठीक है, अगर करेक्ट टीचर नहीं भी मिलता है तो करेक्ट बुक मिल जाने से तुम्हें वो समझ में आ जाएगा. जब तक गुजराती पढ़ते रहोगे इकोनॉमेट्रिक्स समझ में नहीं आएगी. ओके. So make her resume stand out or be strong. देखो आज की डेट में एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ सीरीज दैट आई गेट, वो जो क्या बोलते हैं उसको इन्फ्लेट करके लिखते हैं कि भाई you did this. Either there will be a lot of certificates that you got or you will just expand on the job that you have done और उसके ऊपर 3-4 लाइंस लिख देते हो. As someone who is on the other side, who is reading your CV, ये चीज़ ना बहुत जल्दी apparent हो जाती हैं. There has to be some real meat in the CV. What is that real meat? डिपेंड्स कि सीवी किस चीज के लिए बना रहे हो. अगर मान लो कि रिसर्च के लिए बना रहे हो तो कुछ ना कुछ थीसिस, कुछ ना कुछ ओरिजिनल रिसर्च वर्क होना चाहिए. इट डजंट हैव टू बी समथिंग रेवोल्यूशनरी, राइट. इट कैन जस्ट बी समथिंग वेरी स्मॉल. सपोज तुमने कोई छोटा सा एरिया लिया या कोई डेटा ले लिया और उसका तुमने कुछ भी एक केस स्टडी ही कर दिया, राइट. एनीथिंग दैट शोज दैट यू कैन वर्क विद डेटा, यू कैन you understand data structures and you have some basic knowledge about some softwares. So economics में अगर research के field में जाना है then you have to know either Stata या R. ठीक है, ये सब ज़्यादा चलते हैं. Python भी ठीक ठाक चलता है. Then the next thing that you can do is internship of course counts. लेकिन कोई भी internship से अच्छा है कि कुछ relevant internship का काम किया जाए. एक वो चीज कर सकते हैं. Then another thing that you can do these days is blogs वगैरह लिख सकते हो, especially LinkedIn पे. तो एक एक्टिव LinkedIn प्रोफाइल अगर तुम्हारा है तो it does catch the attention of employers or for internship, right? So LinkedIn पे या कोई और अगर प्लेटफॉर्म है where you are doing some sort of writing, मतलब उससे क्या पता चलता है ना कि you can think analytically and you have a good communication skill where you are able to structure your thoughts, you are able to look at a situation और उसको शायद economic lens से तुम देख सकते हो. You are able to identify a situation and you are able to say get some conclusion out of it, right? लिंक्डइन प्रोफाइल अगर तुम मेंटेन कर रहे हो अपना जो भी तुम्हारा पेज है तो उस पे एक्टिवली कुछ कुछ करते रहो. कीप ऑन पोस्टिंग दैट ओके दिस इज व्हाट आई डिड, दिस इज व्हाट आई डिड. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कल्चर बट दैट सेल्स, राइट. सो व्हाटएवर सेल्स. उसके अलावा व्हाट एल्स. या इंटर्नशिप इज समथिंग दैट एड्स द मोस्ट विजिबिलिटी. बट हाँ, इंटर्नशिप में मैं वही बोलूंगी कि फालतू का इन्फ्लेट मत करो. लेकिन इंटर्नशिप, सम काइंड ऑफ ओरिजिनल रिसर्च एंड अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल. Another thing that can add is a good hobby, right? It is not specific to economics, but any profile, any CV that has a good hobby जिसके के
जिसके ऊपर सिर्फ हॉबी नहीं है, ऐसा रीडिंग हॉबी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि डांसिंग हॉबी, समथिंग वेयर you have actually invested and done something out of it, right? So if that is something you have, then you can try that. Otherwise, for economics, good data skills is something that should come out, and good analytical skills is another thing that should come out. Okay. इंटर्नशिप में अगर ये चीजें अवेलेबल होती हैं, इफ द जॉब इज एबल टू गेट दैट आउट ऑफ यू, देन इट्स द बेस्ट केस. अदरवाइज, डूइंग योर ओन सम डिसर्टेशन, सम रिसर्च, या कुछ एनालिसिस, कुछ ये सब तुम कर सकते हो. ओके, देन अनदर क्वेश्चन. हाँ, व्हाट स्किल्स शुड एवरी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैव? यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पे कुछ चीजें, राइट? इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के जो स्किल्स, आई विल कम टू आईआईटी एंड डीएससी इन अ मिनट. व्हाट टूल्स इकोनॉमिक्स स्टूडेंट शुड श्योरली शुड क्या शुड श्योरली नो अपार्ट फ्रॉम आर? व्हाट टूल्स? अगर कॉर्पोरेट में जाना है तो एक्सेल आना चाहिए, ठीक है? कॉर्पोरेट में जाना तो एक्सेल आना चाहिए. उसके अलावा आज की डेट में बेसिक एआई लिटरेसी आनी होनी चाहिए, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू बिकम अ कोडर, बट एक बेसिक एआई लिटरेसी अपार्ट फ्रॉम यूजिंग चैट जीपीटी टू आस्क बेसिक क्वेश्चन जो तुम पहले गूगल से पूछते थे, वैसा नहीं. तुम्हें क्लॉड में प्रॉब्ली कोवर्क का अंदाजा होना चाहिए. प्रॉब्ली यू शुड नो दैट क्लॉड डिजाइन कैसे काम करता है. हाँ, पीपीटी बनाना है अगर कॉर्पोरेट में भी, तो उस हिसाब से you do not open PowerPoint and you start making it, right? So you are able to work with, at some more advanced level than just Googling, using GPT and Claude as Google's substitutes, right? Um, Apart from that, और कौन सा टूल? सी, इकोनॉमिक्स में और किसी की जरूरत नहीं पड़ती. फॉर डेटा, फॉर इकोनोमेट्रिक्स, स्टेटा या आर, these are what are used most commonly. Python also, but stata are the dominant ones. Okay. हाँ, which skills every economic student should have? इकोनॉमिक्स में कुछ भी करना है तो आपके कॉन्सेप्ट्स और इंट्यूशंस तगड़े होने चाहिए. इस हद तक तगड़े होने चाहिए that you are able to analyze any situation from an economics lens. Economics का मतलब मैं, again, economics is a way of thinking, which means that you can apply that thinking to anything and everything. Sometimes it becomes a problematic part for economics people, especially in emotional relationships. वहां तक मत पहुंचो, बट इतना पहुंच जाओ कि किसी भी चीज को जब देख रहे हो, यू आर एबल टू सी दैट एनी डिसीजन इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ्स, एनी एक्शन रिस्पॉन्ड्स टू इंसेंटिव्स, राइट? जब तुम ये चीजें ऑब्जर्व करने शुरू कर दोगे, चाहे तुम किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, और यू आर इन अ जॉब, और यू आर टैकलिंग एनी सिचुएशन, these things are going to give you a very sophisticated POV of the world, right? So you should be very clear about that. The second thing I have written over here is data literacy. What I mean by data literacy is कि जो बेसिक आपका जो डेटा में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, टाइम सीरीज का क्या मतलब है, क्रॉस सेक्शनल का क्या मतलब है, राइट? पूल्ड डेटा क्या चीज होता है, हाँ, डेटा के जो समरी स्टेटिस्टिक्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, राइट? बेसिक से सर्वे मेथड्स क्या होते हैं, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. डेटा सोर्स लिटरेसी मतलब इंडिया में सपोज किस चीज का क्या मेजर डेटा है, यही नहीं पता. मैं तो बता रही हूँ, मैं अपने कॉलेज के दिनों में बहुत ही गुम रहती थी. आई लर्न दीज थिंग्स वेरी लेट, एंड दैट्स व्हाई आई वांट कि स्टूडेंट्स इसको और थोड़ा जल्दी सीखें. यू शुड नो कि बेसिक डेटा सोर्सेस क्या है, एनएसएस क्या होता है, सीएमआई क्या होता है, आईएसडीएस क्या है, एनएफएचएस क्या है, हाँ, सेंसस का डेटा का क्या यूजफुलनेस है, क्या लिमिटेशन है, राइट? बेसिक डेटा सोर्सेज इंडिया में, वर्ल्ड बैंक का डेटा का क्या मतलब होता है, राइट? आरबीआई का डेटा क्या होता है, मॉनेटरी एग्रीगेट्स का डेटा कहाँ से मिलता है, मोस्टली क्या डेटा पब्लिश करता है, इन्फ्लेशन डेटा कहाँ से मिलता है, सम बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट? दिस इज बेसिक लिटरेसी, डेटा सोर्स लिटरेसी. नॉट टॉकिंग अबाउट गेटिंग अ डिग्री, बट यू हैव टू बी अवेयर. बेसिक स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स जो मैंने बोला कि अब इकोनॉमिक स्टूडेंट हो तो इतना डेटा तो आना चाहिए कि भाई अगर कोई रिग्रेशन देखो तो ये बता पाओ कि भाई इस रिग्रेशन का क्या मतलब है. अगर कोई कोएफिशिएंट देखो तो ये बता पाओ कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने का इसका क्या मतलब है.
और तुमको कोई भी ये नंबर फेंक के ये ना बोल सके कि देखो यहाँ पे तो ये रिलेशनशिप है। यू शुड नो द ट्रैप, कि कोई चीज को कितनी आसानी से आप कॉजालिटी शो कर सकते हो बट वो होता नहीं है, राइट? दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. सम टूल दैट एज यू सेड बेसिकली स्टेटा आर, ये सब कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए. एनालिटिकल एबिलिटी, सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज द इनफॉर्मल लॉजिक. नॉट द फॉर्मल लॉजिक जो कि कभी कभी आजकल तो डीयू में भी नहीं पढ़ाते, हमारे टाइम में दे यूज्ड टू टीच दैट, वेरी यूजफुल सब्जेक्ट. बट इनफॉर्मल लॉजिक विच मीन्स दैट यू आर एबल टू रिकग्नाइज कि कब कौन सा आर्ग्यूमेंट में फैलेसी है. हाँ, कब कौन सा आर्ग्यूमेंट स्लिपरी स्लोप के तरफ जा रहा है, कब कौन सा आर्ग्यूमेंट में सुपरलेटिव यूज किया जा रहा है, कब कहाँ स्लिपरी स्लोप है. You don't have to remember the names. It is just that sometimes, and especially these days, you will see that there are a lot of debates or arguments, counter arguments given that are bullshit in terms of their internal logic. एज एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट, ये तुम्हारी समझ बहुत तगड़ी होनी चाहिए. चाहे तुम आगे इकोनॉमिक्स में काम करो चाहे ना काम करो, इकोनॉमिक्स में भी काम करोगे तो वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, अबाउट drawing conclusions, you have to understand the flow of the logic and what is internally consistent versus inconsistent. All right. And third thing जो मैंने यहाँ पे read लिखा हुआ है, ये मैं बहुत ही ब्रॉड लिखा है, इसमें दो चीजें हैं. पहली चीज के हर किसी के लिए, ये सिर्फ इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए नहीं है. आजकल आई डोंट नो इफ यू डू बुक्स, प्लीज बुक्स पढ़ा करो. इट इज नॉट द सेम एज एन एआई समरी. एंड न्यूज पढ़ो, चाहे तुम न्यूज पेपर से पढ़ो चाहे कहीं और से पढ़ो, न्यूज सुनो मत, दैट इज वर्स देन आई थिंक डूम स्क्रोलिंग. बट न्यूज के बारे में अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड रीडिंग, जस्ट कुछ भी इट जस्ट गिव्स यू सच अ पर्सपेक्टिव अबाउट सो मेनी थिंग्स. जनरल ज्ञान, नॉट इकोनॉमिक स्पेसिफिक, बट ये चीजें हर इकोनॉमिक स्टूडेंट को आनी चाहिए. ऑल राइट. नाउ एनी अदर ग्रीन मंथ्स? इज डूइंग इकोनॉमिक्स एंड मास्टर्स वर्थ इट? व्हाट आफ्टर एन इकोनॉमिक्स डिग्री? ठीक है, सो उसके पहले लेट मी answer this question. What is better among IIT and DSE for pursuing masters in economics? देखो, DSE is a brand, right? Coming from DSE, I will tell you that DSE में economics में बहुत कम सीखोगे. The way the curriculum is designed is more to prepare you as someone who can handle a lot of stress and less to prepare you as an economist. वो करिकुलम ऐसा है कि वहां पे बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ठूस दिया जाता है, जस्ट टू बी वेरी प्रिसाइज. एक एक कोर्स में एक्चुअली दो कोर्स होते हैं वहां पे, राइट? DSE is all about survival, and if you survive that, that's a very important life skill that you will learn over there. But economics थोड़ा कम ही सीखोगे. लेकिन भाई अब ये तो है जरूर कि वो जो ब्रांड है that is very very valuable, right? IIT is IIT, so you have good programs, very good programs in IIT Delhi and in IIT Kanpur. I have colleagues who teach in both these places. Very good programs, right? So definitely good programs, a lot of focus on the quant side. गुड प्रोग्राम्स, गुड फैकल्टी, अप एंड कमिंग, एंड धीरे धीरे इनका जो है ब्रांड भी बढ़ रहा है. DSE कंपेरेबल नहीं है, होगा कि नहीं आई डोंट नो, बट गुड ब्रांड्स, राइट? इवन ब्रांड वाइज गुड, प्लेसमेंट वाइज गुड. DSE वेरी गुड प्लेसमेंट वाइज. आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, आई थिंक 18-20 तो मिनिमम है उधर अभी. ऑल्सो द सेम फॉर IIT, जस्ट दैट व्हाट डू यू से, थोड़ा सा पीछे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम, बट इक्वली गुड ऑप्शंस इफ यू थिंक अबाउट द करिकुलम. आई वुड से IIT का करिकुलम बेहतर ही है. डी स्कूल का करिकुलम इज जस्ट टू मच stuffed together. That's that.
IIT में there's IIT Bombay also, and I got a special when I put up this ये जो मैंने डाला कि I will take this open session. My senior from ISI, he is an IIT Bombay. He and his wife was also my senior in ISI. So दोनों अभी IIT Bombay में है. IIT Bombay does not have a master's program. It has an undergraduate program in economics, 4 year वाला है. लेकिन उनका economics department बढ़िया है, and they do a lot of work in behavioral and experimental economics. So both of these are experimental economists, and मेरे को specially बोला उन्होंने कि तुम इस सेशन में प्लीज टॉक अबाउट एंड प्लीज एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम टू IIT Bombay. So if these are up and coming options not only for masters but also for research, so students also go to these IITs for research as well. So definitely good options. अब जब इसमें से चूज करना है तो चूज करने के लिए इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है. इज ब्रांड नेम वेरी इंपॉर्टेंट टू यू? इज गुड करिकुलम वेरी इंपॉर्टेंट टू यू? और डू यू इवन हैव अ चॉइस? Right? So if you don't have a choice and you get IIT, do not give it up. Right? Definitely go for it. All right. Next question is doing masters in economics worth it? And secondly, what after an economics degree? I will answer these together. PhD program in IIT Mumbai. Yes, there is. ये स्पेसिफिकली बोलने के लिए बोला उन्होंने मेरे को. ठीक है. सो यू कैन लुक अप शुब्रतो बैनर्जी एंड प्रियंका कोठारी. Both of them are economists over there. Both of them are from ISI. Both of them are my seniors. So you can look up. They have a good PhD program. All right. What after an economics degree, and is economics even worth it? When you ask, is masters in economics even worth it? Again, answer depends on कि तुम्हें करना क्या है. अगर तुम्हें सिविल सर्विसेज करना है तो कोई जरूरत नहीं है. राइट? बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मास्टर्स करने की. लेकिन अगर उसके अलावा कुछ करना है तो यस, यू विल नीड इट. इकोनॉमिक्स में अंडर ग्रेजुएट के बाद 4 साल करने के बाद द काइंड ऑफ जॉब्स दैट यू विल नॉट लाइक इट. मोस्टली वो घिसने वाले जॉब्स होंगे. दे कॉल इट एनालिस्ट पोजिशंस, बट रियल एनालिस्ट पोजिशन ओनली स्टार्ट्स वंस यू हैव डन अ मास्टर्स. ठीक है. सो नहीं, अगर CSE करना है तो जरूरत नहीं है. अगर कुछ और जैसे जनरलिस्ट करना है, RBI जनरलिस्ट में जाना है, तो कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में कुछ करना है, राइट, तो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करना पड़ेगा. चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे PhD के लिए, चाहे कॉर्पोरेट के लिए. Usually there are also some government exams that do not require you to get a master's degree in economics. For example, NABARD. I don't think NABARD requires a master's in economics. You can check that. But there are a lot of other grade A government exams that you can give. Does not require a master's. Especially if you're not doing anything specific to economics, a master's will not be required. लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में कुछ करना है या फिर कॉर्पोरेट में जाना है, ढंग की नौकरी चाहिए, तो मास्टर्स करनी पड़ेगी. Which also gets me to this: what after an economics degree? सेम क्वेश्चन. इकोनॉमिक्स डिग्री का मतलब अगर ग्रेजुएशन के बाद है, ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड है. इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक ऑप्शंस लिमिटेड है. इकोनॉमिक्स नॉन स्पेसिफिक ऑप्शंस काफी सारे हैं. यू कैन अगेन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. बहुत सारे जॉब्स हो सकते हैं. जैसे RBI जनरलिस्ट हो गया, राइट, UPSC तो हो गया. You can also go to corporate, but the kind of position, as I said, not good after you just have a bachelor's degree in India. You can do an MS बाहर से कहीं कर सकते हो, या फिर तुम मास्टर्स कर सकते हो. मास्टर्स के बाद that opens more doors: government exams, corporate, academia, all of these things. Plus, when you also have these things that से कोई थिंक टैंक हो गया या नीति आयोग में कोई पोजीशन हो गया, ये सब के भी अलग अलग कभी कभी वैकेंसीज निकलते रहते हैं. देयर आर ऑल्सो सम दैट हैव वेरी स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स बेस्ड रोल्स दैट यू कैन अप्लाई फॉर. सो बात ये नहीं है, जैसा बोलते हुए स्कोप बहुत है, बट बात ये है कि क्लैरिटी नहीं रहती है कि किसके बाद क्या कर सकते हैं. This is a question that is very general and I cannot give more details unless I know के interest क्या है, time horizon क्या है, job suitability क्या है,
और इकोनॉमिक्स फाइनल स्टूडेंट है तो किस चीज में फाइनल है. एक्चुअली दैट्स अ प्रॉब्लम ऑन माय पार्ट. आई डिजाइन द फॉर्म. दिस शुड हैव बीन क्लियरर इन द फॉर्म. But yeah, so if whoever has this question, you can talk to me later. We can talk in detail. Okay, given your specific situation, what can be done after an economics degree. All right, so that answers all the green ones, right? And then I'll move to the yellow ones. Is it better to do a master's degree in economics in India or at LSE? LSE is always better, no? देखो बाहर से डिग्री का वैल्यू ज्यादा है. बाहर भी ज्यादा है और इंडिया में भी ज्यादा है. लेकिन फिर ये भी डिपेंड करता है कि मास्टर्स के बाद करना क्या है. अगर मास्टर्स की डिग्री के बाद इंडिया में वापस आना है, देन इंडिया की मास्टर्स डिग्री आर ऑल्सो गुड इनफ. अ PhD फ्रॉम अब्रॉड इज मच मोर वैल्यूएबल. एंड इफ यू इवन हैव टू कम बैक टू इंडिया, a PhD from abroad has a much higher weightage. It's not like much higher weightage, it's just that you start at a different level, right? So if you have a PhD from abroad, even if you're a fresher, to make you are treated as someone who is already working for a year. And if you have it from India, to uh, uh, you are a fresher in the job market. Master's degree also holds more value if you do it from outside. But again, कि अगर डिग्री के लिए करना है, if you're really interested, go outside. Reach out to you if we have further questions later. So my number is on the website. I will also share it here. So you can write to me, or you can वो नंबर है तो व्हाट्सएप कर देना मेरे को. मैं सभी बच्चों को WhatsApp is available, so you can just ask whatever questions you have. All right. What's your view in doing MS from abroad? So this is the same sort of question है ना अजय. तो डेफिनेटली अब्रॉड से करिए. डिग्री बेहतर मिलेगी, कोर्स बेहतर मिलेगा, एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन मिलेगा. डू इट, डू इट. What stops students is two things. One is that they don't get an admission because कभी रेफरेंस नहीं होता या कभी सेलेक्ट नहीं होते. और दूसरा कि they don't get a scholarship. Studying abroad is very costly. If you get a scholarship, that's brilliant. Definitely go for it. But if you are applying बाहर, अवनी एंड निश्चित मस्ट नो दिस, बाहर अप्लाई करने का मतलब है कि आपको सॉलिड रेफरेंसेस चाहिए. हर एप्लीकेशन में रेफरेंसेस लगते हैं. ठीक है. ऑलराइट. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द येलो क्वेश्चंस जो कि थोड़े से ब्रॉडर और भी ब्रॉडर है, राइट? So I know that Nishit's question is in here, so I'll come to that question, Nishit. I know who has asked what question, but I'm just pointing out for you and for Ajay. Sorry about that. Okay. Huh. So this student has a question that I want to know what's the end destination. When I read this ना, तो मैं थोड़ा सा डर गई कि बच्चे पूछना क्या चाह रहे हैं. So I mean, how out of scope uh, is the question out of scope? But it is not exactly. So what this student is asking is that I want to know what's the end destination, end job we can get after studying economics. What can be our final career options other than consulting, research, public policy? And this person, she or he, wants to know some stable career options. Now, is this person here? Nahi? All right. If this person is not here, तो मैं इसको ब्रीफली आंसर करती हूँ. अच्छा, यू आर हियर टीना. टीना, ऑल राइट टीना. तो मेरे को ये बताओ कि व्हेन यू से फाइनल, व्हाट टाइम होराइजन आर यू थिंकिंग? And you give me a minute because I will need to get the charger also. Just type it and I'll just be back.
Yeah, after doing masters. Hmm. So I guess we have already talked a lot about this, but your question specifically is कि consulting या research या public policy में नहीं जाना है. आप तुम टीचिंग में जा सकते हो. So there are certain places where you can just do teaching. Not a lot of research is required, or you can do teaching and research is also required, but just that you have to settle for not getting very far along on those lines. डेफिनेटली कॉर्पोरेट में जा सकते हो. कॉर्पोरेट में इकोनॉमिक्स करके अच्छा पैसा मिलता है. ऑल दीज, सो योर डी स्कूल, योर IITs, योर IGIDR, योर मद्रास स्कूल हो गया, ISI हो गया, सब जगह से बढ़िया प्लेसमेंट्स होते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं. सो यू विल हैव अ स्टेबल जॉब. इफ यू लाइक द कॉर्पोरेट कल्चर, you can definitely try it out, right? So you can do that. If you don't want to go for public, see, out of all these things, corporate में enter करना relatively easier है compared to say government exams. But you can also do a PhD. PhD के बाद you can get into academia or into teaching. That's another option. Masters के बाद you can also do a lot of, जैसे ये government exams तो हो ही गए, but उसके अलावा you can also do a lot of think tanks kind of thing, जैसे NIPFP में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर maybe say Niti Aayog also has positions. Sometimes ministries also open up positions, that kind of thing. But public policy you don't want. What else? So corporate हो गया. mm, UNICEF and World Bank, they also open positions for masters. They do give preference to PhDs because इसमें research component काफी होता है, लेकिन काफी सारा component उसमें ये भी होता है that it's a client facing role, so you have to also get, say, sponsorships, right? So if that kind of thing you like, you can do that as well. Mm, yeah, anything that matches your vibe, you can tell me. Yeah. इकोनॉमिक्स के बाद कॉर्पोरेट एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है और एक बहुत ही वेल रिवॉर्डिंग ऑप्शन है. सो इफ यू डू नॉट वांट टू गेट इनटू रिसर्च और टीचिंग या गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉर्पोरेट में जाओ. हाँ, लेकिन तुमने अपार्ट फ्रॉम कंसल्टिंग भी बोला था, तो कॉर्पोरेट में भी तुम रिसर्च कर सकते हो. It will be more specific to the company that you're working with, but you can do that. Or you can also pivot a little, right? I'll just go. You can also pivot a little and you can think about more finance specific roles, right? So banking and finance and these kinds of roles. If you're also willing to pivot a little more, you can think more about regulatory roles also. जैसे SEBI में positions होते हैं, SEBI के लिए apply कर सकते हो, right? ये भी ये नाबार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी पोजीशन है. कॉर्पोरेट में जो रोल्स हैं, कॉर्पोरेट में यू स्टार्ट एज एन एनालिस्ट यूजुअली, एंड देन यू गेट, फिर वो कंसल्टिंग वाले लाइन वही है. सो सिंस यू रोट अदर देन कंसल्टिंग, तो एनालिस्ट रोल से ही शुरू करते हैं, फिर तुम मॉडलिंग में जाते हो, है ना. You can work in banks, you can work in, sometimes FMCGs also used to hire in our times, consultancies hire करती हैं, all these kinds of things are there. So it requires comfort with data, but corporate का economics is very different than, वो थोड़ा नाटक ज्यादा रहता है उधर. लेकिन a lot of these companies also have, so you will see all these, जैसे कभी क्रिसल हो गया या जो भी banks हैं हमारे यहाँ, HDFC बैंक, you will see that there is a chief economist there. Of course that is a later position that will come, but there is a chief economist, which means that this person, ये लोग पूरा, अभी भी अगर न्यूज़पेपर खोलते हो, खोलते नहीं हो तो प्लीज खोलना शुरू कर दो. न्यूज़पेपर में तुमने देखा होगा कि जब भी कोई भी RBI का कुछ आता है, 12 तारीख को अगर कोई नंबर्स आ रहे हैं, RBI की कोई रिपोर्ट आ रही है, before that there'll be some analysis that these guys will do, or they will make their own predictions, because banks and these companies, जो भी बड़े बड़े corporations हैं, they also need this information for their own business. So they have dedicated economist positions to do all this study and data analysis and forecasting. So it will come later, but it is a job track that you can try, right? Okay. Now let's get to the second question. I wanted to know career options beside government jobs and strategies before masters. I think I have mostly answered this. Beside government jobs, may before masters is
लेस ऑप्शन, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स के पहले ऑप्शंस कम होते हैं, लेकिन आप फिर भी कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। आप किसी टाइप के पॉलिसी थिंक टैंक्स में जा सकते हैं। जैसे अवनी एंड निशित ओवर हियर, दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद, लेट मी जस्ट रीड आउट, they are working with Chintan Foundation. So I just realized that the pad that I'm using is, or because I attended a it was a seminar over there, right? So I'm still using this pad. And so you can get a job in a lot of these kinds of foundation. You can talk to them also that कैसा काम होता है. They do a lot of research work. They do a lot of writing work over there. Very close to economics. Very a lot of learning opportunities over there as well, right? So this is also you can do. Again, बैचलर्स के बाद ऑप्शंस कम रहते हैं, मास्टर्स के बाद बहुत सारे होते हैं. ठीक है. What's next after fourth year BA economics? Same. I think this has already been answered. All right. How difficult is it for someone from non-economics background like engineering to pivot to economics? And what are the possible career options for such a person? Possible career options for such a person is the same, probably broader. And how difficult it is for someone from non-economics background, it is very doable, and it is very frequently done also. My batch in D school, a lot of engineers, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद इन्होंने कॉर्पोरेट में नौकरी ली, पसंद नहीं आया इन्हें, दे डिड नॉट लाइक द कॉर्पोरेट जॉब, दे लेफ्ट द जॉब्स, दे pivoted to economics. So for masters, you in economics, you just need any undergraduate degree, right, with math. So they pivoted to economics. They did their masters in economics from D school. Then they did their the same group also followed me to ISI. इन्होंने PhD भी की, और फिर उसके बाद ये पूरा प्योर अकेडमिया में है. एंड यू नो yeah, it's the same. A lot of them have also, कॉर्पोरेट से वापस आके तो लोग वापस कॉर्पोरेट में नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारे जो आरबीआई के जो अभी गवर्नर हैं, आरबीआई गवर्नर, एनीवन? संजय मल्होत्रा. संजय मल्होत्रा. संजय मल्होत्रा. हाय अभिषेक, आई डिड नॉट सी यू. Yeah. सो हेलो. संजय मल्होत्रा is an engineer by training, right? So there is nothing stopping you. And engineers also have a lot of advantage in economics because मैथ उनकी तगड़ी होती है. सो इकोनॉमिक्स में जो है जो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट है, या फिर जो एडवांस्ड माइक्रो में यू हैव इधर से अप्लाइड थ्योरी हो गया, या कोर थ्योरी हो गया, या गेम थ्योरी हो गया, या मैकेनिज्म डिजाइन हो गया. ऑल दीज रिक्वायर very strong linear algebra, topology, right? Or you have optimization. ये सब में मैथ चाहिए, एंड मैथ भी लीनियर अलजेब्रा वाली मैथ चाहिए, नॉट द स्टैट्स वाली मैथ. सो इंजीनियर्स का वो काफी स्ट्रांग होता है, बिकॉज दे हैव डन द इंजीनियरिंग. तो अगर ढंग की जगह से ढंग से किया है, तो दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड इन दिस. They get an advantage at least in the entrances. So एंट्रेंस एग्जाम में मैथ वाले पोर्शन उनके लिए बहुत इजी होते हैं, तो वो लोग कर लेते हैं, और उसके बाद इट इज जस्ट द सेम. नथिंग इज स्टॉपिंग. इफ यू गेट द इकोनॉमिक इंट्यूशन, इफ यू आर एबल टू थिंक लाइक दैट, it's the same. You can definitely pivot, and again you have the same options. Okay. All right. Now job prospects is again very broad, already answered. Okay, this is a question which is again much more philosophical than I expected. Abhishek, was this your question, Abhishek? Were any of these your questions? No, the engineering one was my question. Engineering one was your question. Yeah. All right, all right. So did you know that Sanjay Malhotra was an engineer? Yeah, I did, yes. Yeah. Don't worry. Okay. Huh. This is a question that is kind of talking about कि अब इकोनॉमिक्स में मास्टर्स भी कर ली, तो अब क्या करें. ठीक है.
So I'll just go over this question briefly. So I'll just tell you Nishit ka question hai. He, as I told you, did masters from Jindal when I was teaching. So he's my student, and right now he's working in Chintan Foundation, where he's doing a lot of work that is close to economics. Yeah. So the question is that do I go for another 1 year masters, right? MSc preferably, as I already have an MA, or abroad, या फिर सीधे PhD के लिए जाना चाहिए. I guess my question also raises, sorry, from the अरे what just happened? Okay. So my question also raises from the fact that I may not be content with pursuing only economics or a desk research job. In that light, an MSc to change my field to maybe mostly AI and data science related is my current research area, right? Seem like a viable option, this topic. And he's also considering PhD. And कुछ और डिग्री करना है इसको, ये इसके बारे में श्योर है, बट ही इज नॉट श्योर व्हाट डिग्री. और don't worry, Nishit. This is what else we here for. Don't worry about it. See, you have written it out, others have not written it out, right? But all of us grapple with the same kind of thing, so don't worry about it. तो मेरे को ऐसा लगता है निशित कि अगर पीएचडी तुम्हें नहीं करनी है, जो मैं पहले भी बोल रही हूँ, अगर घर वालों को लग रहा है कि तुमको पीएचडी करना चाहिए तो आप मत करें. किसी को भी नहीं करनी चाहिए. पीएचडी इज अ कमिटमेंट which is not going to leave you in 2 years. And it will, when it leaves you, you will be in a position where you already were before you were doing PhD. अगर तुमने रिसर्च नहीं करनी है, अगर तुमको वो दिल से वो फायर नहीं फील होता रिसर्च के लिए, तो डोंट डू इट. What you can do, because I say that you are interested in AI and data science related, you can do a degree which is at the intersection of economics and AI and data science. So what I actually did was I looked up a few of these options for you. Maybe you have also looked it up. अशोका में एक कोर्स होता है. सो इंडिया में इकोनॉमिक्स प्लस डेटा साइंस के कोर्सेज हैं काफी, 4-5 बढ़िया ऑप्शंस हैं. ठीक है. So you have a course in Ashoka, and most of these are 1 year programs. So these are not the usual master's program of 2 years. You've already done a master's, और कितना master's करोगे? But ये economics plus data science है. So you have it in Ashoka, you have it in Flame, you have it in the Central University of Andhra Pradesh, right? And there's also a program in Madras School of Economics. So ये 4 options तो इंडिया में हैं. Economics plus data science. ठीक है. अगर AI में specifically जाना है, right? Then, and if you want to go abroad, there is a very good program in the University of Birmingham, which is very close to what you want to do. So this is economics plus AI plus data science. And there is another up and coming option in MIT also. So MIT may be a much more difficult place to get into, but you can definitely try, क्योंकि ये program ही बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है ना, मतलब मेन स्ट्रीम प्रोग्राम में नहीं जा रहे हो. वेरी अपकमिंग, वेरी पॉपुलर. लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम एंड MIT में अगर बाहर से करना है, these are your 2 options. Must be more, right? These are just some quick search that I did. You can do that, and you can also try options in India. And this is a very promising field क्योंकि I don't have to give you reason. But it will also tell you कि AI के साथ काम करने का मतलब क्या होता है. AI के साथ काम करने का मतलब सिर्फ वो उसका गूगलिंग नहीं होता है. And plus, you cannot also rely on AI beyond a point. So it will also teach you कि AI का क्या limitation है, क्या uses है, right? AI और data science में फर्क क्या है, machine learning क्या है. ये हम 3-4 चीजें जो एक साथ फेंक देते हैं, वो चीजों में if you have done research along those lines at Chintan, तो तुम्हें ऑलरेडी ये चीजें का ब्रॉडली पता है. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन AI एंड डेटा साइंस ना, देन डू दैट. माई पर्सनल सजेशन वुड बी टू यू दैट PhD में अगर पेरेंट्स प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें मत जाओ, अनलेस यू हैव दैट, यू नो, वो प्यार है तुम्हें रिसर्च से और तुम्हें एक्साइटमेंट होती है ये सब चीजें देखकर. ऑलराइट. You want to do a course, I suggest कि better है that you do something at the intersection of economics and AI and data science. ठीक है.
ओके, आई डोंट नो व्हाई आई पुट दिस इन येलो, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर मास्टर्स। ओके, कुछ और क्वेश्चन हो तो मेरे को अलग से ही पूछ लेना निश्चित, ठीक है ना? फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर मास्टर्स। ओके, दिस इज अ वेरी interesting question. This is the last question. Which career is good keeping health in mind? As IES mostly posts in Delhi, but everybody knows Delhi is full of pollution. And in this scenario, how to decide things? Whoever asked this question, are you here? No? नहीं? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, क्योंकि everywhere in India is polluted. All cities are polluted. They are just more polluted or less polluted. If you want to get out of Delhi and you want to stick with economics, so in fact, RBI Grade B DEPR, which is your preferred exam, जिसके लिए तुम prepare कर रहे हो, that is the best. क्योंकि it will post you in Mumbai. So you will get out of Delhi. If you want to get out further, the best option is that you get into a corporate job which allows remote working, and you go into the mountains or the beach and you work remotely. That is all I can say about this. Yes, nobody wants to stay in Delhi. It has become poisonous in a lot of ways, very problematic. But a lot of good things are in Delhi. A lot of opportunities are in Delhi. The government is in Delhi. But the central bank is not in Delhi. I mean, it has branches, लेकिन अगर आप DPR में जाएंगे तो आप बॉम्बे चले जाएंगे। अगर आप जर्नलिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप देश में बहुत सारे जगह पोस्ट हो सकते हो, जहाँ भी RBI के रीजनल ऑफिसेज हैं। DPR will move you to Bombay. So that, given your target exam, would be the simplest solution for you. नहीं, not very stickler for RBI DPR, do something, either join a कोई ऐसा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो जो कोई एक बेहतर शहर में है, away from the metro cities. You can do that. You can join a university in Bangalore probably, but then you will be stuck in traffic. Or you can, go for IIT, sorry, BITS Goa. वो भी एक ऑप्शन है। कुछ ऐसे जगह जा सकते हो जहाँ पे मौसम बढ़िया है, पोल्यूशन कम है, या फिर बॉम्बे चले जाओ। That is one thing. So uh, this is I guess, the widest question that I got, but it is a very legit question again. We have to look for our health ultimately. तो health ही है ना। But yeah, so another option is that you don't have to start with your first job outside Delhi, right? But you can get into something that eventually moves you outside Delhi. That's also a legit plan, because if you stay in Delhi, you make a good career, probably you get to a stage where you are able to move outside, and you are able to work remotely, and then you can move outside Delhi or whatever is this. I mean, whatever is your zone of pollution tolerance, you can get out of that. Or if you are very keen, you can also get out of India, and then you will be in even better health position. All depends. लेकिन ये है कि जरूरी नहीं है कि आप पहला ही जॉब वैसा करें। आप ऐसा एक ट्रैजेक्टरी अपने लिए प्लान कर सकते हैं। A lot of things also unfold as life unfolds, right? So you can, if that is your goal in mind, then whatever decisions you make, you can just keep that goal in mind and choose the next steps which get you closer to that destination, right? All right. There was a question that I pushed to the end, so I will just try to answer it quickly if that has already not been answered. Okay, so Tina was asking that taking a drop this year since my CUET PG score wasn't that good. Apart from preparing for CUET PG, what do you think? Should I do this year? Make the most of this time. So CUET PG score अगर अच्छा नहीं था और CUET PG ही करना है, Tina, I think your question was the first one, right? सिर्फ CUET PG के लिए ड्रॉप मत लो, नॉट वर्थ इट, राइट? इतना एग्जाम में टाइम लगना ही नहीं है, और अभी तो हम जून में ही हैं, उसका एग्जाम मार्च में होगा। तो
do an internship, get a job, right? Or you can, whatever is your target exam, कुछ वैसा कर सकती हो. Maybe look for some government exams that don't require a master's. बट CUET PG के लिए पूरा ईयर मत ड्रॉप लो, कुछ ना कुछ करो, मास्टर्स वो कर लो, या तो इंटर्नशिप कर लो, या फिर you can also do some sort of research at your own end. If you want to do something with me, you can talk to me also, so we can just do some sort of a short dissertation about it. वो कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है. या किसी और प्रोफेसर को जानते हो, उनके साथ कर सकते हो, कुछ ना कुछ करो. CUET PG के लिए पूरा साल ड्रॉप देना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है. तुमने ऑलरेडी 4 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है. You need to prepare for 3 months for that. That's it. Right? Do something. You talk to me, you talk to anyone you know, you do some research, you do some internship. कुछ करो, ब्लॉग लिखना चालू कर दो, बट पूरा साल ड्रॉप मत लो उसके लिए. All right, that is how I have now addressed all the questions that are here. I think if someone has one more question, I'll take it 1-2 minute में. Otherwise, I close it क्योंकि हमने काफी time, we have spent a lot of time. I hope it was useful for you guys. I hope you found it to what you thought this session will be about. Yeah. All right. Okay, is there any quick question that someone has that I can take? Otherwise, we can end this session. And if any of you, so I'll just put my number over here. And अगर मेरे से कुछ भी करना है, अच्छा, next what I'm going to do is I am going to take another session maybe next week where I will talk specifically about UPSC with economics optional, RBI and IES. So that will be a technical session जहाँ पे हम syllabus, books, preparation और timeline की बात करेंगे. That will be very, very specific, not the exploratory kind of thing that we have done here. So if that is something that you want to talk or discuss, then I will inform you about the next session. Okay. Okay. I think I got a message and someone messaged and I did not see it. All right. I will. Okay, Ajay, that's great. Thank you, Tina. I hope you guys found it useful. एक बार मेरे को number share करने दो. I don't remember my own number. 1 second. Yeah. What is the number, भाई? यार, can either Yukti or Ayush share my number, Econiti वाला number, please? I know it's 9211, but I am forgetting after that. Yeah, thank you, Ayush. Thank you so much. Okay, so this is Econiti's official number. Usually it is with me. So you can ask any question या कुछ भी और बात करनी है. I'm always here for my students. All right, so let's end this session and have a good weekend, all of you. I will end the recording. Yeah.